5 months shall be for previous year question analysis and note making in first phase. पहले जो 4 मंथ है उसमें हम नोट्स ज्यादा नहीं बनाएंगे, उसमें आप हर फेज का एक एक मंथ का मैंने शेड्यूल पुटअप किया है, ठीक है। बाकी उनका पर्सनल शेड्यूल है जो आपको मैं पीडीएफ कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। सो बेसिकली पॉलिटी 1 मंथ में कवर करिए एट एवरी लेवल ऑफ योर लाइफ और एट एवरी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। कुछ चीजें अर्जेंट होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो उतनी अर्जेंट नहीं है। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, and I'm very excited to have a session with you guys, because I'm very thankful to you because you have provided your valuable time to us. And today we are having a session on uh, those people who are having the time crunch, right? And despite having a time crunch, they wanted to prepare for civil services. They wanted to become an IAS or an IPS like Soham. Okay. uh, the day before yesterday, I recorded a video where I shared what would be the scenario, what would be the SOP for today's webinar, and accordingly we'll go. I'm Praveen Garje, heading the mentorship team of Civils Daily, and today I'm having one of our good student, Soham Mandre. Soham is an IPS officer of 2023 batch, and he was a revenue service officer customs in 2022 batch. He cracked that revenue. He was a revenue officer, and this year he is an IPS. So the best part is he has been associated with Civils Daily since last 2 years, and in both the years he was our mentorship student. Additionally, the we are lucky to have a super mentor uh, as a super mentor to Soham. So Soham is, earlier he was a student, and right now he is a teacher here at Civils Daily. Okay, so he went to an NBA just I think last month, and from NPA only he is talking to us. So hi Soham. Hello sir, good evening. Good evening. How are you? I'm good sir, I'm good. How are you sir? Great, I'm doing well, thank you. So guys, I hope everything is great. So I would like to share the screen here. Okay, guys, I would like to hear ki is everyone am I audible correctly, and can you see the screen? Yes sir, yes sir. Awesome. Okay, so fine, perfect. So quickly moving forward, see, being a working professional, what are the challenges people face? Okay, 2025 में एग्जाम है, ठीक है, जैसे मैंने कहा था 17 months, ऑलमोस्ट 1.5 साल अभी बचे हुए हैं। बट द प्रॉब्लम क्या है ना कि सबको लगता है बहुत टाइम है। ट्रस्ट मी कि टाइम नहीं है, वही मैंने कहा था कि टाइम बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत समय लग जाता है। एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करनी होती है। 17 मंथ्स को डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर आप सिर्फ 4.5-5 घंटे दोगे तो फिर टाइम तो आपके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस? फर्स्टली आई वुड लाइक टू टेल कि व्हाट आर द चैलेंजेस पीपल फेस, those who are working professional or a college student. All of you might be facing these challenges, but I would like to enlist and tell you here कि because of limited amount of time, the candidate they have to they can dedicate to study, because obviously you have to be very smart while studying, because you are merely having a 5 hours, despite all other student who are normal student, they are having 12 hours per day. Okay, so here obviously 7 hour का लैक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। सेकेंड, आपको बैलेंस करना पड़ता है कॉलेज लाइफ या वर्क लाइफ, एंड वो प्रेशर सारा, उसके साथ साथ आपको पढ़ना पड़ता है, आपका माइंड पूरा टायर्ड हो चुका होता है, ठीक है। तो एडिशनली आपको लाइफ में कोई तो मेंटर चाहिए होता है जिससे आप बात कर सके, जिससे आप बता सके, प्लस आप नॉन एकेडमिक हेल्प की बात करो, प्लस एकेडमिकली भी आपको कोई ना कोई एक डायरेक्शन चाहिए होती है, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर हैविंग फुल डे एंड इफ यू आर फुल टाइम प्रिपेयरिंग, देन हो सकता है आप कुछ गलत भी पढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आप वो चीज पढ़ोगे, वो चीज कवर करोगे जो कोर ऑफ द सिलेबस है, कोर ऑफ द यूपीएससी, यूपीएससी का कोर है। बट अगर आपके पास लिमिटेड समय है एंड वो भी अगर आप नॉन कोर या पेरिफेरल चीजों में लगा दोगे, तो आपके पास टाइम क्रंच होगा एंड आपके सिलेबस भी फिनिश नहीं होगा, राइट। सो बेसिकली यू हैव टू हैव द मेंटर हु कैन गाइड एंड सपोर्ट you and sell you through this exam, right?
So these are few challenges which you might be facing. Okay, I would like to quickly cover कि अब करना क्या है. See, ये तो this time management matrix, इसको quadrant कहते हैं. ये आपके anyways लाइफ में काम आएगा, right? Like अभी तो आप, मैं यूपीएससी की बात कर रहा हूँ, but चलो मान लो यूपीएससी नहीं, जनरल लाइफ भी हो, तब भी आपको ये काम आने वाला है ना? कैसे? क्योंकि every like at every level of your life or at every point of your life कुछ चीजें अर्जेंट होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो उतनी अर्जेंट नहीं है, ठीक है? कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है बट फिर भी वो अर्जेंट हो जाती है, ठीक है? तो यू हैव टू बी स्मार्ट, राइट? अभी तो आप सर्विस में नहीं है, कल सर्विस में जाने के बाद भी आपको इसी क्वाड्रेंट के अनुसार काम करना होता है, ठीक है? तो could you please tell me anyone here कि who like what is the very important quadrant in which कि आप प्रायोरिटी किसको दोगे? Which quadrant will be very very important for us, like out of these four? Very good, very good, very good. I can see the comments. The first quadrant is very important, guys, because that quadrant is urgent as well and important as well, right? See, with respect to fourth quadrant, which is non-important and non-urgent, you have to delete that. क्योंकि आपके पास, समझो आपके पास सिर्फ 5 घंटे है, तो आपको ना प्रायोरिटीज सेट करनी होगी, ठीक है? तो जो भी ट्रैवल एक्टिविटीज है, कुछ कॉल्स, ईमेल्स है, टाइम वेस्टर्स है, सोशल मीडिया है, आपको उस सबको, वो नॉन इंपॉर्टेंट भी है, नॉन अर्जेंट भी है, उसको आपको इलिमिनेट करना होगा, ठीक है? एंड जो थर्ड क्वाड्रेंट है, जो अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है? तो अर्जेंट है, करना तो है, बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या करो? डेलीगेट करो, ठीक है? प्लीज डेलीगेट योर वर्क टू अदर्स, ठीक है? फैमिली मेंबर है, उनको करने दो, क्योंकि आपको पढ़ना है, ठीक है? आप वहां पे लीडरशिप मत दिखाओ, ठीक है? फर्स्ट टू क्वाड्रेंट्स आर इंपॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट वन इज मोर इंपॉर्टेंट, इन दोनों को आपको करना है, ठीक है? फाइन. मूविंग अहेड. So I think how the macro study plan for time crunch aspirant shall be different than the full time aspirant. Okay, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं ऐसा क्या करूं सर, और मैं कि मुझे बाकी लोगों से कम समय में ये चीजें में हो जाए, मैं बन जाऊं, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट है. वन ऑफ द स्टूडेंट इज सोहम, कि जो वर्किंग थे और उन्हें निकाला एग्जाम, ठीक है? मंत्री मौर्य है, अर्चिषा भट्टाचार्य जी है, तो बहुत सारे, मतलब अर्चिषा की तो ऐसी स्टोरी है, बट आई वुड लाइक टू टेल यू हियर कि उसको बिल्कुल छुट्टी नहीं मिली, मतलब प्री क्वालिफाई हुई थी, उसके बाद भी प्री का उसको फील नहीं आ रहा था कि सर पता नहीं क्वालिफाई होंगे नहीं होंगे, सी सेट टफ गया था. आफ्टर 35 डेज ऑफ रिजल्ट उसको पता चला कि वो क्वालिफाइड है, तब फिर उसको लीव डालनी पड़ी, फिर भी लीव मिली नहीं थी, ठीक है? लास्ट के 45 डेज में उसने जॉब भी चेंज किया था, तब नहीं मिली थी, लास्ट के 45 डेज में लीव मिली. एंड थ्रू आउट हर प्रीलिम्स एंड मेंस शी वेर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर 5 to 5.5 आवर्स. ओके, लास्ट के 45 डेज में भी ज्यादा नहीं पढ़ पाई, आई थिंक कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी. सो बट at the end of the day she scored like 404 rank, and she scored well in exams. 818 नंबर थे टोटल, and मेंस में, and rank 404, which is a very good rank, a decent rank, and इस साल फिर से वो दे रही है. So that's the plan basically, कि आपको अलग क्या करना है. So I think Soham is the best person here. Soham, I would like to contribute and I would like to enlighten us कि how the macro study plan for time crunch aspirant shall be different than the full time aspirant. Yes sir, definitely. सबको पता है कि as a college student or working professional we get very limited time, and हम हमारे कंपटीशन इन लोगों के साथ है जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, who have 12 hours 14 hours a day to prepare. And being as a part of a mentorship program, we can plan something for 4 5 hours 6 hours 5 hours a day, which will be as effective as the people who are studying for to say 12 hours 10 hours. So इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो राइट होनी चाहिए, इन प्रॉपरली एंकर्ड होनी चाहिए, डायरेक्शन अच्छी होनी चाहिए, तो फिर देन इट इज पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट दैट. फर्स्ट थिंग आती है इसमें कि रिसोर्स कंसोलिडेशन एक चीज है
कि मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, रिसोर्सेस है, नोट्स है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स के, एंड बीइंग अ वल्नरेबल एस्पिरेंट इनिशियली हमको ऐसा लगता है कि everything is important. If you see any new notes, then we get attracted toward that. But necessary नहीं है कि वो सही है. तो ये बताने के लिए कोई चाहिए कि what are the correct resources to follow and what are the wrong resources to follow. So resource consolidation come first. We have to have limited resources in that. The first thing is that then to understand what are the resources that are important. So for that, the syllabus analyzing is very much important. Previous year questions, syllabus, all those things makes foundation strong. If we know the syllabus, we can uh, filter the content. Suppose हम NCERT पढ़ रहे हैं या फिर कोई एक और book पढ़ रहे हैं, that resource consolidation comes there. One NCERT and one reference book, that is only necessary. And after selecting our resources, it is necessary है कि उसमें से भी क्या पढ़ना है. ये सारी किताबें यूपीएससी के लिए बनाई नहीं गई है. We know that they are for CBSE, they are for literature. So from that books, there are very selective content that हमको पढ़ना है. So syllabus targeting is very much important, and for that हमको previous year questions की understanding होनी चाहिए, हमको syllabus की understanding होनी चाहिए. Then next come the vertical approach. What means by that? We know that suppose G20 is happening, and G20 there are many meetings are happening all across India. Maybe in Jammu Kashmir, in Pune, about urban 20, women 20 in some city. So we do not need to go in depth for UPSC, particularly E-Summit, what happened there. We have to have only macro analysis of G20 outcomes, what happened in India, what were the issues. So we need to have that approach where we only focus on horizontal approach, means only covering broad points and not going in depth. We are not doing PhD. हम यहाँ पे PhD करने के लिए आए नहीं हैं. General level understanding, general level knowledge is sufficient for this. So here also mentor will help you. Then as we get less time, हमारे पास समय बहुत कम होता है तो and monotonous हो जाता है UPSC का preparation. We read and we continue the schedule. We go to work, we go to colleges, we complete assignments there. And after that, coming back home and again looking for the UPSC preparation, it becomes very hectic and हमको attractive नहीं लगता है. तो फिर we have to make it attractive. So for that, video learning, then talking to the mentors, talking to the what are the areas to cover, setting targets is important. And next, उसमें हमको help करता है कि keeping the challenges, keeping the small targets and achieving them. That Pomodoro technique, we will discuss that later. We have to have हमको एक small targets होने चाहिए जिनको हमको meet करना है, and small happinesses in this monotonous journey will help us keep continuing in this UPSC journey. उसके बाद one of the important thing is to have a contingency plan. What means by that? We have to have some buffer time. Suppose we are getting 5 hours a day for studies, so उसमें से 30 minutes होने चाहिए कि बफर रखना है. उसके लिए कोई प्लान नहीं बनाना है. So जो भी आप 4.3 आवर्स में, 4.5 आवर्स में जो भी आप आपके टारगेट्स मीट कर पाओ और जो भी टारगेट मिस हो जाए तो वो टारगेट को हम उस कंटिजेंसी प्लान या फिर बफर आवर में कंप्लीट करना है. या फिर यू कैन गो फॉर वीडियो इंटरेक्टिव लर्निंग और टेस्ट, anything you like to make your journey more interesting. Then next come, we have to plan our time, plan our months, plan our days, plan our weeks. But first comes that हमको हमारे मंथ्स प्लान करने हैं. तो उसमें से कौन से मंथ में क्या होगा, फिर ऑप्शनल कब होगा, जीएस कब होगा, जीएस में कौन सा एरिया कब होगा. तो इस लेवल की प्लानिंग हमको करनी है. इसमें आपको मेंटर्स हेल्प कर सकते हैं. तो ये जो बताया गया लास्ट पॉइंट में 4 5 4 4, तो उसमें फर्स्ट 4 आर नंबर ऑफ मंथ्स. उस 4 मंथ्स में हमको बेसिक करना है. बेसिक हमारा फाउंडेशन स्टार्ट करना है. उसमें एनसीईआरटी हो सकती है, बेसिक रेफरेंस बुक हो सकता है, या फिर करंट अफेयर्स जो आप समाचार मंथन फॉलो कर सकते हो, इसमें से आप कवर कर सकते हो. While doing this, we discussed that previous year question और सिलेबस का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है.
Suppose you are getting 5 hours, you can keep periodic reminder, suppose hourly reminder, उसमें वो reminder बजने के बाद you can just read 2-3 syllabus points and read 2-3 previous year question along with this. So first 4 months will be for basics, that will include NCERT and other stuff as mentioned in the slide. The next 5 months shall be for previous year question analysis and note making. In first phase, पहले जो 4 मंथ है उसमें हम नोट्स ज्यादा नहीं बनाएंगे, उसमें आप अंडरलाइन कर सकते हो, क्योंकि होता क्या है कि इनिशियली हमारे अंडरस्टैंडिंग उतनी होती नहीं है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यूपीएससी। जो भी हम पढ़ते हैं तो हमको सब इम्पोर्टेंट लगता है। तो while in first phase, what we are doing, reading the basic NCERTs, underlining the stuff, and simultaneously we are continuously referring previous year question and syllabus. In first phase, we will develop adequate understanding. What is the UPSC, what they are demanding, likewise. So in next phase, next 5 months, proper in detail analysis of previous year questions, then detailed study of GS 1, 2, 3, 4 with note making and test writing, that shall be there. So this is the most important phase of your journey. In first phase, we created foundation. In second phase, we are building something on that. So this is the most important phase. The next phase of 4 months, as mentioned in the slide, will be for optional or essay, whatever, or you can also add buffer. If you miss any targets in phase 2, you can give some time to that in phase 3. Optional and essay, these are the 2 areas. ये 2 ऐसे areas है जिसमें आपकी रैंक, आपकी सर्विस, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि ऐसे में मार्किंग बहुत ज्यादा रैंडम या फिर ऊपर नीचे बहुत होती है. You can get 70 or you can get 150. Same for optional. If you write average answer, you will get 240. If you write good answer, you get 270 plus. So this is also important phase. So this second and third phase are very much important. And next, the most important phase will be February onwards till your prelims, where we are preparing dedicatedly for prelims, because once we do not clear the prelims, we cannot write mains, and entire 3 phases will help in next attempt, but the prelim phase is also important. So for this also, again, the same approach, previous year question होने चाहिए हमारे पास, syllabus होना चाहिए, या फिर resources ठीक से होने चाहिए, current affairs ठीक से ये होंगे, so we increases our chances to clear the prelims. So this is what I think, this 4-5-4-4 plan shall be there. I think Praveen sir will take the next session forward. Hello. Yes, I'm audible. Awesome. So thank you, Soham. So basically, this is what the mantra is. I would like to take you here. But this is the wow moment for all of you guys, because you guys joined in the in working days, that too in the evening, just because you might be working or you might be a college student and you want to crack the exam, and 17 months are more than sufficient. Pawan Datta cracked the exam 7 months prior to the prelims, but he was not working, he was full time preparing. And all these working professionals started their preparation around 16 to 18 months prior to prelims, including Mantri Maurya and a lot of other students. Okay, so 4-5-4-4, this is the plan Civil Study made, and through our central guidelines we have been following this plan for 2 types of student, working and college. And for full time there is another plan of 13 months that I will, for in any other webinar I will discuss that too, for those kind of students. Okay, so thank you so much, Soham, for this enlightenment. And the best part is this slide, because this slide will tells you how vertical approach should be avoided, बिकॉज पीपल फेल क्यों होते हैं यार। आप रात को थक के घर आओ, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पीएसयू में हैं, बैंक में हैं, ठीक है, इतनी ट्रैवलिंग करने के बाद रात को घर आते हैं, फिर आप 1200 पेजेस की लक्ष्मीकांत, अब ये मेरे पास है, अब ये लक्ष्मीकांत आप देखो, अब इसको आपको पढ़ने का मन करेगा? ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ इमेजेस है, ना कुछ मजा आने वाली चीजें है। तो जैसे सोहम ने कहा कि मेक इट इंटरेक्टिव, तो आपको जहां जहां लगे वहां वहां वीडियो की हेल्प लेनी है, जहां जहां लगे वहां वहां आंसर राइटिंग, नोट मेकिंग, टेस्ट सीरीज, इससे आपका दिल बहलाना है और पढ़ाई भी होती रहे और आपको पता भी ना चले, इस काइंड सिचुएशन आपको करनी होगी। एंड रिसोर्स कंसोलिडेशन,
जैसे मैंने कहा कि 54 एनसीईआरटीज पढ़ने का एक जनरल कन्वेंशन है। मैं जब दिल्ली में था 2013 में, मुझे यही बताया गया था, एज अ स्टूडेंट में था, तो कि इतना पढ़ना पड़ेगा। बट बाय द टाइम आई गॉट टू नो कि अभी वी हैव बीन मेंटरिंग सिंस आई हैव बीन मेंटरिंग सिंस 7.5 years, आई गॉट टू नो कि देयर आर ओनली 17 एनसीईआरटी, दैट टू स्पेसिफिक चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट। तो फिर बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल आप इतने क्यों पढ़ोगे 54 एनसीईआरटी, राइट? सो ग्रेट। सो दिस इज व्हाट द मंत्रा 4544। उसके बाद आता है, ये तो हो गया मैक्रो स्टडी प्लान। अब हम जाएंगे कि इन डिटेल हमारे टॉपर्स ने कैसी पढ़ाई की और मेंटर्स ने उनको कैसे हेल्प करी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस में, 1-to-1 डिस्कशंस के थ्रू, पोस्ट टेस्ट डिस्कशंस के थ्रू। ठीक है, और बीइंग अ सुपर मेंटर सोहम भी कैसे बच्चों को हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हम शेड्यूल के थ्रू जानेंगे। उसके पहले all the students, all the participants, there is quick assignment for you. So from the Civils Daily team, I would request Pranshu कि Pranshu please post uh, like a link on Zoom chat box. ठीक है, and guys, there is, I would like to know your learning style, because everyone has their own learning style, everyone has their customized approach to deal with this exam, and you might be having your own. ठीक है, so our mantra is every student is a badge. So I will treat you as a badge. So I would like to know about you. So please open the chat box and click on this link, the bit.ly link, and there are only 4 questions which you have to answer. These are probing questions, and by that, by answering or by selecting options in that 4 questions, जो भी ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है उसको आप चूज करो। ठीक है, आप करो, मैं बातें कर रहा हूँ, 2 मिनट है आपके पास। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट कि आपको ये डिसीजन मेकिंग आपकी, हम आपका इंटेंट कितना स्ट्रांग है ये बताएगी, एंड दिस डिसीजन मेकिंग विल हेल्प अस आउट कि आपको कौन सा कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, हमारे मेंटर्स को बड़ा इजी होगा। इवन सोहम भी आपको रीच आउट, अगर आपको बात करनी है तो सोहम भी आपसे बात करेंगे कि फिर इस प्रॉब्लम के लिए क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। हमने उसी अकॉर्डिंग बहुत स्टडी करके ये प्रोबिंग क्वेश्चंस बनाए हैं, उसमें से कुछ सैंपल आपको हमने दिया है। ठीक है, सो प्लीज fill the assignment, like answer the query, answer the questions, and let me know once done. ठीक है, so yes, great. So I'll give 2 more minutes to you guys. Please fill the assignment, and Pranshu, let me know like how many people are filling the yes, how many people are, you know, yes, providing the assignment. Additionally, there is one more point I would like to add you here. I'm having the Mantri Maurya's day week wise schedule. Okay, mentor. This schedule has provided by his personal mentor during his own preparation. He was our mentorship student of batch 2 2021. Okay, so right now we are having batch for 2024 and 2025. That time for 2021, which started in uh, June 2020. Okay, and Mantri Moria joined in May. Okay, means May June 2020. There are 2 batches basically. Second batch was was in May, and first batch was in April. Okay, so this detailed weekly schedule of 17 months will be, I'll send it to you over your email once you will submit the assignment. Fine, so please do submit the assignment if you are interested to know ki how Mantri Maurya sailed through this exam and which kind of weekly personal schedule Civils Delhi was providing to him. Okay, Pranshu, may I know like shall I move forward? चलो ठीक है, आई होप कि पीपल मस्ट हैव लाइक फील द रिस्पॉन्सेस। ग्रेट, सो चलो आते हैं अभी, विल डिस्कस की दिस वीकली टाइम टेबल। प्लीज टेक 2 मिनट्स, आराम से इसको पढ़ो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। आई वुड लाइक टू रीड दिस entirely column by column, and I would like to tell you ki how consistency or accountability will create a difference. Okay, uh, I'll help you. ठीक है, so the date was uh, 3rd May, from 3rd May to 11th May. ठीक है, the batch started on 3rd May. Fine,
I'll look at the chat after this. Okay, I would like to explain the in the first week, if you see, the target given was polity NCRTs. There were two NCRTs, Indian Constitution at Work and Political Theory. These are very very important NCRTs, guys, and we start our preparation by NCRT only, as Soham recommended, as Soham told कि phase 1 is of NCRTs. Okay, and mentor बताते हैं कि focus किस पे करना है. See, रिसोर्स कंसल्टेशन करके देना, रिसोर्स प्रोवाइड करना इज अ डिफरेंट गेम, बट फोकस किस पे करना है इज अल्टुगेदर डिफरेंट गेम. ठीक है, तो फोकस शुड बी, इफ आई zoom this, ठीक है, read this out. Focus should be more on philosophy behind the constitution, liberty, fundamental rights, etc., building conceptual understanding. If making note, keep them minimalistic and crisp. Underline, highlight important lines in the book itself. Okay, so what mentor asked to focus on these things only. Conceptual building करो, first point. Second point, अगर कुछ important लगता है underline करो, ठीक है, and philosophy समझो, because since 2018 के बाद पैटर्न बहुत चेंज हुआ है. फॉर एन इंस्टांस 2016-17 में एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, ठीक है, आप स्कोर भी अच्छा कर पाते थे. 2016 का प्रीलिम्स का स्कोर कट ऑफ था 116.116.66. ओके, और राइट नाउ द कट ऑफ इज अराउंड लाइक 80 समथिंग, 87 88 में कट ऑफ आ रही है. ठीक है, प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ. सो दिस मीन्स व्हाट, की पेपर टफ साइड में होते जा रहा है. ठीक है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे पेपर ज्यादा है. और अगर मैं पॉलिटी की बात करूं, अब यहाँ पे पॉलिटी की बात हो रही है, तो पॉलिटी का फिलोसॉफिकल टिल्ट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कि व्हाट इज मीन बाय सेक्युलरिज्म, व्हाट इज पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, व्हाट इज नेगेटिव सेक्युलरिज्म, लाइक इंडिया फॉलोइंग विच काइंड ऑफ सेक्युलरिज्म, फ्रांस कौन सा फॉलो करता है. ठीक है, सो स्टेट इंटरवेंशन है नहीं है, वो सब चीजें. सो यहाँ पे मेंटर बताने की कोशिश कर रहे हैं फोकस किस पे किया जाए, करंट ट्रेंड ऑफ एग्जाम को लेके, सोर्स क्या है, सब्जेक्ट क्या है. If you'll see what the mentorship call log, see, this is very important. The mentorship call log, orientation call done, given overview of entire course, approach explained, and weekly timetable set. आप बताइए कि अगर कोई मेंटर जो 2 सिविल सर्विस इंटरव्यू अपीयर्ड है एंड सुपर मेंटर जो खुद IAS IPS है, वो आपके लिए शेड्यूल बना के दे रहे हैं, वीकली आपको टाइम टेबल सेट करके दे रहे हैं, आपको बस उसके ऊपर चलना है. ठीक है, यहाँ पे इंटरवेंशन क्या है मेंटर का, इंटरवेंशन मीन मेंटर को यहाँ पे क्या बताना है, आपका कस्टमाइज, आपसे कस्टमाइज क्वेश्चन लिए गए हैं, उनका आंसर लिया गया है, उससे हम एक आपको इंटरवेंशन देते हैं. तो यहाँ पे मंत्री मौर्य रैंक 28 के लिए इंटरवेंशन क्या था, नो नीड टू मेमोराइज द एनसीईआरटी, फोकस ओनली ऑन हाईलाइटिंग द कीवर्ड्स एंड गेटिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है, क्योंकि कभी कभी बच्चे बहुत समय लगा देते हैं पढ़ने में, तो क्विकली फिनिश करो. ठीक है ना, बार बार रिवाइज करना ही है हमें. ठीक है, फॉरगेटिंग करो, पता होगा, जो एनी गिवन डे आप कितने भी अच्छे से पढ़ो भूल ही जाओगे आप. ठीक है, 20 मिनट में आप 30% भूल जाते हो, 9 आवर्स में आप सिर्फ 30% याद रखते हो, 70% भूल जाते हो. ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमने यूज करा है. नेक्स्ट कॉल कब है, 11 मई को है. ठीक है, तो दिस इज अ फेज 1 गाइस. इसमें आप देखो सब्जेक्ट में करंट अफेयर हमने कवर करा है विद पॉलिटी. मैंने 1 महीने का डाला है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास भी टाइम क्राइसिस है, तो 1 आवर में मैं इतना नहीं बता पाऊंगा. तो हर फेज का एक मंथ का मैंने शेड्यूल पुटअप किया है. ठीक है, बाकी उनका पर्सनल शेड्यूल है जो आपको मैं PDF कर दूंगा, सेंड कर दूंगा. सो बेसिकली पॉलिटी 1 मंथ में कवर करिए विथ NCERT, by using NCERT and Lakshmikant. Okay, if I see the second slide, phase 2. फेज 2 में आप देखो, फेज 2 चालू हो रहा है 1 सितंबर. तो 1 सितंबर को मंत्री मौर्य क्या पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे GS1. तो GS1 के साथ साथ उनकी आंसर राइटिंग भी चल रही थी. समाचार मंथन डेली 2 आंसर्स वो लिख रहे थे. नितिन सिंघानिया बेस्ट किताब है आर्ट एंड कल्चर के लिए, जो लोग पढ़ाई चालू कर दे उनको पता होगा. एंड फिर इन्होंने एंशिएंट मेडिवल एंड कल्चर का ओवरव्यू दिया है एंड बताया है कि आर्ट एंड कल्चर के मेंस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस रखिएगा. मेंस मेजर एरियाज जो है वो वहीं से पूछे जाते हैं कल्चर से. ठीक है, तो ये सारा इंटरवेंशन के बाद ऐसे वीकली टारगेट, जैसे हमने फेज 2 में क्या बोला है, अगर मैं आपको दिखाऊं, आई वुड लाइक टू शो यू. सी, दिस इज अ फेज 2, 5 months PYQ एनालिसिस, डिटेल स्टडी ऑफ GS पेपर 1 2 3 4 विथ नोट मेकिंग. तो GS पेपर 1 की स्टडी चल रही है मंत्री मौर्य की सितंबर में. ठीक है, फेज 2 में. यस,
1 सितंबर टू 8 सितंबर, ठीक है, ही वाज स्टडिंग जीएस पेपर 1, ठीक है। एंड देन अकॉर्डिंगली सी, यहाँ पे आपको बताया गया है मई टू सितंबर, बट आप समझो उसकी एग्जाम कब थी, 2021 का शेड्यूल बता रहा हूँ। 2021 में कोविड की वजह से 4 अक्टूबर को एग्जाम हुई थी, 10 अक्टूबर को, एंड 2020 में हुई थी 4 अक्टूबर। तो पैटर्न अक्टूबर टू अक्टूबर शेड्यूल चल रहा था यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का। अभी जो शेड्यूल है वो मई टू मई चलता है, इसलिए उसकी साइकिल सितंबर मई से चालू हुई थी, आपकी साइकिल जनवरी से चालू होने वाली अभी होगी, ठीक है। तो इसीलिए उनका फेज 2 जो है वो सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, और आपका मैंने मई से बताया, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दिस एवरीथिंग इज एयर टाइट, ओके। बाकी मंथ को आप छोड़ो, एवरीथिंग इज एयर टाइट, एवरीथिंग इज इन दैट स्मूथली मैनर कि आपको सिर्फ आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी असेसमेंट, प्रूफ ऑफ वर्क, ये सब लिया जा रहा है। और ऐसे टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं, तो इन दिस वे, ठीक है। तो फेज 3 अगर बात करूं, तो फेज 3 में फिर इन्होंने ऑप्शनल चालू किया है, ठीक है। एंड साथ में साथ इथिक्स वो कर रहे थे, एंड जो जो उन्होंने किया, रिवीजन किया, सब कुछ यहाँ पे बताया गया। फेज 4 में अ, हमने कहा था प्रीलिम्स मोड है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स की स्टडी चालू हुई है। प्रीलिम्स के आप देखोगे फर्स्ट रो में, तो एडवांस प्रीलिम्स टेस्ट विद फुल पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, एडवांस 02 टेस्ट ऑफ हिस्ट्री, 03 ऑफ इंडियन इकोनॉमी, दिस टेस्ट ही वाज गिविंग ऑन एवरी वीक। एंड यहाँ पे इंटरवेंशन हो रहा था, एंड यहाँ पे इनका पोस्ट टेस्ट डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। if if this 4 phase plan of 17 months, if you follow that, it ensures reading, note making, revision, daily answer writing, and test series of prelims and mains. Moreover, we also take care of pyq analysis and weekly mentor intervention, ठीक है। ये सब इस 17 month का पार्ट है, ठीक है। let me see the chat. uh Subhash is saying show the macro schedule again please. Yeah, see, so this is the macro schedule, okay. 4544 Soham has explained really well. So जब 2021 की बात थी, तो ये मंथ आपके लिए है, 2025 के लिए वो मंथ अलग थे, लेकिन प्लान से दूंगा आपको, ओके फाइन। So if I'll talk about the effective time allocation, right? If I'll talk about effective time allocation, so what Mantri Moria has done, he's ranked 28 in 2021. He, like, he wanted a schedule. Our mentor has created a schedule. Okay, he wanted to set clear target. Our mentor has provided a clear target, right? And सबसे important बात, जो mentor एक चाहिए लाइफ में, जैसे मैं आपको बोला कि mentor की importance क्यों है, तो सोहम, what do you think, why mentor is important? मेंटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट सर, क्योंकि जब हम चालू करते हैं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डू नॉट हैव समवन टू गाइड। उनके फैमिली में कोई सिविल सर्विस क्लियर किया हुआ होता नहीं है, जैसे कि मेरा भी केस था। व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड उसमें से भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमको करना क्या नहीं है। वी डू लॉट ऑफ थिंग्स। तो जो कुछ करना नहीं है, जो यूपीएससी में रैंक लाने के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो बताने के लिए मेंटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। फॉर मी, माय फर्स्ट अटेम्प्ट, आई मिस द इंटरव्यू कॉल बाय 20 मार्क्स। मेंस में मेरे स्कोर कम था। तो as soon as I realized that I'm preparing from my home, a rural area, I was preparing from there. So sitting in a single room with no one around who is preparing for UPSC and no one to guide, मुझे ऐसा लगा कि कोई तो होना चाहिए जो मुझे बता सके क्या चीजें करनी है, क्या नहीं करनी है। So at that time, I connected with the Sajal sir through Civis Daily. Sukanya ma'am was there and other mentors were there. उन्होंने फिर मेरा जीएस का स्कोर 364 से बढ़ा के 416 तक पहुंचा दिया। दैट वाज अ ह्यूज इंप्रूवमेंट टू से। मींस 10 नंबर में तो 100 रैंक्स बैठ जाते हैं। मेरा तो राइट, उन्होंने राइट। 40 प्लस इंक्रीज करके दिया जीएस का स्कोर। सो हैविंग अ मेंटर इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। मेंटर हमको किस में मदद करता है? वो आंसर राइटिंग में मदद करता है। बाकी हो गया, देन साइकोलॉजिकल हेल्थ हो गई, या फिर अदर एक्टिविटीज, दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। हाउ टू राइट गुड आंसर्स, सिली मिस्टेक्स हम जो करते हैं उसके ऊपर इम्प्रूवमेंट कैसा करना है, और ग्रेजुअली बताते हैं। ऐसा नहीं कि वो वन इन वन गो बता देते कि ये 4 चीजें कर दो।
वो मेंटर आपको बताएगा कि एक चीज कर लो, अगले टेस्ट में वो दूसरी बताएंगे, अगले टेस्ट में तीसरी बताएंगे। तो ग्रेजुअली जो हमको सूट करता है, जो हम सह सकते हैं, उस हिसाब से इम्प्रूवमेंट करने में मेंटर हमारी मदद करते हैं, जैसे कि सर ने मेरी की थी। So, mentor is very much important. And sir, also you have experience of guiding almost 90 plus selected candidates. You know it better. You can explain further. Thank you, Som. Yes, absolutely. I'm having, yes, correctly said, ki I'm having the experience. But if a student himself who got the benefited from the program, if he himself will tell, the conviction would be different, right? So thank you so much, Soham. Moving ahead, क्रिएटिंग अ टाइम टेबल इज अनदर हसल, ठीक है ना। और कितने टाइम टेबल हमने बनाए, डस्टबिन में फेंक दिए। 1 जनवरी को भी आपने वही करा होगा कि तोड़ना है, कुछ करना है। 15 दिन 20 दिन आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होती है कि आप चीजें खत्म भी करते हो। बट आपको एक चीज समझनी है, जिसलिए हम यहाँ पे हैं आज, कि यार वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी आर नॉट मशीन्स, राइट? एंड ह्यूमन बीइंग्स हैविंग सर्टेन इमोशंस, तो वी आर हैविंग सर्टेन इमोशंस। तो हैविंग सेड दैट, अगर आपको मैनेजर ने डांटा तो आपकी रात को पढ़ाई होगी क्या? यू शुड नीड समथिंग, अ पंक्चर। तो कौन है यहाँ पे? मेंटर है। सर ये हुआ, ठीक है, मुझे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। तो कोई नहीं, आप ये करते हैं, अब हम ये वीडियो देख लेंगे, टेस्ट सीरीज कर लेंगे। चलो कोई बात नहीं, आज हम बातें करते हैं, थोड़ा सा नॉन एकेडमिकली आपको मैं पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, या मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ कि सोहम बताएंगे कि मैं 2019 में कैसे स्ट्रगल किया एंड फिर मेरी रैंक कैसे आई, रेवेन्यू में मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, 267, उसके बाद 218 एंड ऑल दिस थिंग्स। सो जब कोई ऐसे शेयर करता है तो हमें लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ शिप में, ठीक है। तो इसलिए आपको एक मेंटर, या कोई भी मेंटर कोई भी हो सकता है, आपके पापा, आपके मम्मी, आपके कोई भी, दोज हु आर हैविंग द इनफॉर्मल रिलेशन एज वेल। हैविंग सेड दैट, अ सेंट्रल गाइडलाइन होनी चाहिए एंड अ फॉर्मल रिलेशन भी मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि वीकली इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। एक बार बता दिया, चले गए, उसको हम मेंटरशिप नहीं कहेंगे प्रोबेबली, ठीक है। सो डिजाइनिंग अ स्टडी टाइम टेबल, मैंने बता दिया कि 5 घंटे। तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ, हालांकि आई हैव एक्सप्लेन दोस थिंग्स हियर। सो यहाँ पे यस, इन दिस फेज 1 we have provided the timetable. See, यहाँ पे if you please come on, like please come to third row, and intervention of mentor, इवन सेकेंड रो, 3 आवर्स पॉलिटी करने को बोला था, 1 आवर समाचार मंथन विच इज अ करंट अफेयर प्रोग्राम विच इज अ फेमस करंट अफेयर प्रोग्राम ऑफ सिविल्स डेली। यहाँ पे समाचार मंथन का वीडियो देखने के लिए बोला था, एंड पीडीएफ जो हमारी वीकली पीडीएफ है, तो वीडियो के बाद पीडीएफ आपको रिवाइज करनी है एंड वहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना है, ठीक है। तो 3+1 प्लस आपको आंसर राइटिंग ½ एन आवर की, एंड उसके बाद ½ एन आवर रिवीजन, ऐसे 5 आवर्स का आपका प्लान है, ठीक है। सो 3 आवर्स लक्ष्मीकांत, 1 आवर समाचार मंथन वीडियो, 30 मिनट समाचार मंथन के 2 क्वेश्चंस एंड 30 मिनट पॉलिटी रिवीजन। सी, दोज पीपल हु गेट कंफ्यूज कि सर मैं कहाँ देखूं, दिस इज, ठीक है। ओके, सो दिस इज अ 5 आवर प्लान फॉर मंत्री मौर्य, एंड 80% टारगेट भी अगर आप अचीव करते हो, दैट इज सक्सेस, ठीक है। मंत्री मौर्य ने 80% करा था, देखो वहां पे लिखा हुआ है। सो बेसिकली ऑब्वियसली प्रैग्मेटिक एंड आइडियलिस्ट में फर्क होता है। चलो मूविंग अहेड, मैं क्विकली थोड़ा बता दूं कि सिविल्स डेली का ये असेसमेंट बताने के बाद हम थोड़ा सोहम से बातें भी करेंगे। यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ सोहम एंड सोहम विल आंसर क्विकली। तो सिविल्स डेली की प्रीलिम असेसमेंट कैसे करते हैं? तो वी आर हैविंग अ प्रॉपर एयर टाइट फ्रेमवर्क in which we we have been asking our student to fill this Excel, कि आपने कितना स्कोर, ये बहुत टेस्ट है। अगर फर्स्ट कॉलम में देखो तो 60 टेस्ट है, यहाँ पे बस मैंने आपको एक स्निपेट दिखाया है कि टोटल स्कोर कितना आया, हाउ मेनी ऑफ देम आर इनकरेक्ट। बट द की हियर इज, if the question is incorrect, if your answer is not correct, if you couldn't answer it correctly, that is okay, but you have to analyze by yourself and you have to sit with your mentor and see कि कहाँ गलती हुई। so that incorrect by which angle, like awareness gap था, conceptual gap था, revision gap था, या x factor gap। x factor gap means silly mistake, anxiety, nervousness, कुछ और प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं कर पाया सर, ओवर कॉन्फिडेंट। ओके, सो if you will do the reverse engineering and if you got to know कि सर अब मान लो कि कुछ भी
कोई भी क्वेश्चन ले लो, जैसे कि अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पे कुछ क्वेश्चन आ गया, कुछ गाइडलाइंस पूछी 2016 की, तो आपने पढ़ी हुई थी, इट मींस देयर वाज नॉट अ अवेयरनेस गैप, बट इवन नॉट अ कंसेप्चुअल गैप, बट देयर वाज अ रिवीजन गैप। ओके, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ था, आपको याद नहीं आ रहा है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, वो गाइडलाइन से, रूल से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो दैट वाज अ रिवीजन गैप। और अगर मैंने रिवीजन भी किया करा था, बट ओवर कॉन्फिडेंट में मैंने ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़े, दैट इज एक्स फैक्टर गैप। ओके, एंड देन आपका गेस वर्क कितना काम कर रहा है, ग्रीन में हम लिखते हैं कि इतने करेक्ट हुए गेस वर्क के, पिंक में या रेड में इतने इनकरेक्ट हुए। सो दिस इज व्हाट, अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हो तो मेंटर आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं कि आपका प्रीलिम्स क्यों रुक रहा है। I believe here there must be a lot of students who have given the attempt but couldn't clear the prelims. तो this is the way guys कि जिससे आप prelims qualify हो सकते हो। सेम हम मेंस के लिए करते हैं। मेंस के लिए there is assessment framework which you can see here कि question comprehension, suppose you have written, you have submitted mains essential program 01 copy of polity, 20 questions 3 hours, आपने 15 क्वेश्चन लिखे, सबमिटेड। तो क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन हम देखते हैं, उसके ऊपर हम आपको ग्रेड देते हैं, आंसर अलाइनमेंट कैसा था, क्वेश्चन डायरेक्टिव्स जो थे आपने ध्यान से पढ़े नहीं पढ़े, टेल वर्ड्स, स्ट्रक्चर, इंट्रो, कंक्लूजन, सब हेडिंग, फ्लो ऑफ थॉट कैसा था, एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइक दिस आर वेरी क्रिटिकल थिंग्स, सॉरी लाइक माइन्यूट थिंग्स की कंटेंट कैसा था, presentation, language, expression. See, so why we have done this? Because कि by these 8+ years of experience of civils daily, we know कि आपको नंबर मिलते हैं मेंस में, उसी हिसाब से आपकी रैंक है कि आपको जॉब मिलेगा। तो वो नंबर किस हिसाब से मिलते हैं? देयर आर 3 पैरामीटर्स गाइस, क्वेश्चन इंटरप्रिटेशन, क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इफ योर स्ट्रक्चर इज गुड you will get few numbers, 1 number out of 10, like highest 5 होता है। then question interpretation 2 numbers and quality of content 2 numbers। suppose डेमोक्रेसी की बात हो रही है, you have to put मैकफर्सन in it, ठीक है। so आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट एनरिच हो गया, ठीक है। आप दुनिया लिखो, नंबर नहीं आएंगे, ठीक है। so 150 वर्ड जिनको पता है 150 वर्ड लिखने होते हैं, ऐसा बोलते हैं, यूपीएससी गाइडलाइन में लिखा है, बट 120 वर्ड में भी काम होता है। हैविंग सेड दैट कि आपकी क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिमांड ऑफ क्वेश्चन आपने पकड़नी चाहिए, ठीक है। सो वी सी दिस एवरी दिस थिंग्स एंड देन वी कंक्लूड कि आपको नंबर क्यों कम आए, नंबर कैसे इंप्रूव करें, ठीक है। ओके, सो दिस थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस कि डेली प्रोग्रेस मेंटर चेक करते हैं, टारगेट्स विच आई हैव शोन यू दिस मंत्री मोरिया वाला शेड्यूल, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए, ठीक है। एंड टाइम मैनेजमेंट इज द की बीइंग अ वर्किंग प्रोफेशनल। आपको समझना होगा कि यार मेरे को डिफरेंट करना पड़ेगा, तब जाके रैंक आएगी, ठीक है। एंड स्मार्ट करना पड़ेगा रादर। नॉलेज, जैसे मैंने कहा था, नॉलेज इज द बेस, नॉलेज इज नॉट द की राइट नाउ, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटर, ठीक है, फाइन। if I'll talk about efficiency and distraction elimination, I have never seen anybody in my life except सोहम, ठीक है। सोहम को मैंने देखा है, इतना फोकस बंदा है, आई एम नॉट लाइक बटरिंग हिम इन फ्रंट ऑफ हिम, आई हैव सीन हिम एंड हैट्स ऑफ टू हिम। आई वुड लाइक टू गिव हिम अपॉर्चुनिटी टू talk with like for 2-3 minutes on how to remain focused. Yes, sir, definitely. Focus, having focus is very much important क्योंकि that increases efficiency, that increases our what we can say, our efforts, then output. मैं सब कुछ ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से बहुत ज्यादा स्मार्ट था, मेरिटोरियस था। तो डिसिप्लिन एंड फोकस, ये दो चीजें हैं जिन्होंने मुझे रैंक दिला दी। तो उसके लिए, डिसिप्लिन के लिए बहुत इतना कुछ सोफिस्टिकेशन लाने की जरूरत होती नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें होती है जो इफ वी डू, वो हेल्प करते हैं हमको टू स्टडी मोर बेटरली एंड टू get output. So that includes, first thing will be meditation. Daily meditation is required, whatever जो भी आपको possible हो, 15 minutes, 5 minutes. Even during the interview मैं meditation करता था around 30 minutes to 1 hour. So that helps to calm mind and get whatever stored in the mind whenever required. So this is one. Then दूसरा एक चीज है कि जो छोटी छोटी चीजें हैं, suppose whatever distracts, it can be mobile, it can be social media, it can be friends, it can be any social incident, social aspect.
तो जो भी आप उसको मिनिमाइज कर पाओ, जो भी आप उसको आपसे दूर रख पाओ, तो आपको हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली मोबाइल फोन जो था मुझे रैंडमली अट्रैक्ट करता था। आई विल पिक इट अप, आई विल चेक ऑन सोशल मीडिया एक्सेट्रा. One small improvement that I used to lock my mobile in my cupboard and I used to give that key to my father or mother. So this type of small activities helps you to improve your focus gradually. Initially, it takes a lot of efforts to stay focused. तो gradually meditation के साथ इसके साथ हो जाता है. उसके बाद आता है कि पोमोडोरो टेक्निक होती है, टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि लॉन्ग पीरियड वी कैनॉट सिट कंटिन्यूअसली फोकस्ड. छोटे छोटे ब्रेक लेने पड़ते हैं. सपोज यू read for 45 minutes, revise whatever you read for 45 minutes in 5 minutes and have some other activity done in 10 minutes. You can listen to music, you can do whatever that distract you. Here distraction is needed. After sitting for 45 50 minutes, you need a distraction which will calm your mind. This type of activities will help you to remain focused. I think we will discuss more in later as time permits in our program. I think that's certain. Right. Awesome. So basically, strategy for efficiency: eliminate distraction and utilize the Pomodoro technique. ठीक है, तो 45 मिनट बाद 5 मिनट ब्रेक लेना है, फिर से बैठना है. ठीक है, so this is Japanese technique. So best. Thank you so much. So moving ahead, how a mentor can guide and support aspirant. So this is what I have explained, I think, throughout my presentation कि guidance from an expert कितना जरूरी है, support and motivation चाहिए, because we are a human beings with certain emotion. चाहे आप एयर 1 आने वाले हो, लाइक आपको पता है, सोम को पता है, मतलब आई कैन टेल माई एक्सपीरियंस, मैंने भी 2 इंटरव्यू दिए, तो आपको नहीं पता होता है कि सच में आपको प्री भी देनी पड़ेगी अगले साल, या आपका एयर 1 भी आ जाएगा, या इवन एयर 1 को भी नहीं पता होता है. हर किसी को भी आप पूछना, वो बोलते हैं कि अच्छा वो मैं साइकिल से बाहर निकल गया, मतलब मुझे फिर से एग्जाम ना देना पड़े. तो इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है रैंक आने तक. तो इसीलिए मोटिवेशन एंड सपोर्ट आपको एंड तक चाहिए. जब तक होली लिस्ट में आपका नाम नहीं आता, तब तक आपको पढ़ना है. ठीक है, तो दैट फॉर दैट थिंग you need someone who is experienced and expert in the respective field. Fine. This is okay. I think this is fine. Stay inspired, work harder. Mentor will take care of all these things. Don't worry. We take care to revise the things 5 times. We do take care. You should just remain focused. कभी carrot model, कभी stick model use करके we keep motivating you, or any mentor which we were already having, he will or she will ensure the same. ठीक है, and you didn't come this far to only come this far. ठीक है, तो आप अभी बीच में अटक रहे हो, छोड़ने का मन कर रहा है, तो आप अब तक क्यों कर रहे हो, वो जरूर याद रखना. ठीक है, these are the testimonials. Thanks to Aditya Pandey and Mantri Maurya, who giving compliment to us and who are always talk about us, and उनके सक्सेस में जो भी सीरीज डेली ने करा है, उसके लिए हमारा वो कर्तव्य है, बट आप हमें उसके लिए एक्नॉलेज कर रहे हो. इवन सोहम तो आपके सामने ही है, तो उनको वो भी एक्नॉलेज कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू. सो आदित्य पांडे रैंक 48 2023 बैच IAS एंड 2022 एग्जाम, एंड मंत्री मौर्य जिनका मैंने शेड्यूल आपको दिखाया, सो आप चैट भी देख सकते हैं, 12 अक्टूबर 2021 की है. सो दिस इज व्हाट, लाइक ही आल्सो गॉट रैंक 28 in 2021 exam, 2022 batch IAS officer. Fine. So this is it. Right now the stage is open to you guys. Pranshu, please unmute everyone, and please raise your hands. I'll prompt your name and you can ask question to IPS officer Soham Mandre.